Is the screen visible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just give me a minute then. Okay. Let's begin. Development of new industries in India. Due to lack of British support and experience of management and capital, the Indian businessmen could not come forward in large numbers. Yet some of them built up their business by overcoming these problems. अच्छा हुआ क्या था अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इंग्लैंड में, ठीक है, बट इंडिया में नहीं हुआ था, ठीक है, और नॉलेज लैक ऑफ नॉलेज एक इशू था, ठीक है, ब्रिटिश सपोर्ट नहीं था इन लोग को, किसको, इंडियंस को, और इनके पास मैनेजमेंट कैसे करने का या कैपिटल, सर कैपिटल मतलब किसी कंट्री का कैपिटल क्या, नहीं, कैश को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल बोला जाता है, ठीक है, तो कैपिटल भी इन्फ्यूज कराना था, ये सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ इंडियंस ने ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया एंड अपना अपना जो बिजनेस है उसको अच्छे से उन्होंने सेटअप किया. क्लियर है एवरीवन? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. Moving ahead. Yes, moving sir. ahead. 1853, Kawaji Nanabai Dawar started the first textile mill. Underline करेंगे. In 1853, Kawaji Nanabai Dawar started the first textile mill in Mumbai. In 1855, the first jute mill was started at Rishra in Bengal. Underline करेंगे. In 1855, the first jute mill was started at Rishra in Bengal. In 1907, Jamshedji Tata established the Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur. ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया तुम लोगों को, कुछ बिजनेसमैन ने ये सारे प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज लेके एक्सेप्ट किया और उन्होंने डील भी किया, उसको ओवरकम करने को फुल ट्राई किया, ठीक है, तो उसके वजह से पहला जो टेक्सटाइल मिल है वो मुंबई में स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1853. ओके, देन रिश्रा क्या जगह का नाम है, कहाँ पे आया, बंगाल में, वहां पे तुम्हारा फर्स्ट जूट मिल. सर जूट क्या होता है, अगर तुमने देखा रहेगा कोकोनट का आउटर कवरिंग जो रहता है ना, उसको पील ऑफ करके लोग ना रस्सी बनाते हैं, तो उसको जूट बोलते हैं, ठीक है, उसको जूट बोलते हैं. सर इसका क्या बनता है, इसका रोप्स बनता है, बैग्स बनता है, ठीक है, सैक्स बनता है, तो ये बेसिकली जूट उस चीज के लिए यूज होता है. तो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1855. देन none other than Jamshedji Tata, he started the first Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur. In which year? 1907. समझ में आ रहा है? Everyone clear? Yes, sir. Okay. In India, coal, metal, sugar, cement, and chemical industries came to be started. धीरे धीरे ये लोगों ने जिस तरीके से सेटअप करना स्टार्ट किया, इसको देख के बाकी लोग भी एंकरेज हुए एंड बाकी सेक्टर दैट इज कोल, सीमेंट, शुगर, केमिकल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके इन्होंने सेटअप करना स्टार्ट कर लिया. क्लियर है? Yes, sir. पढ़ के लो यहाँ तक. मूव अहेड टू द सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स. Okay, sir. Due to the lack of British support, it's clear to the management and capacity in the business to not come forward in a large number. Some of them believe that the business are overcoming these problems in 1853. Kawaji Nanabai Dawar started the first textile mill in Mumbai in 1918. By the first jute mill was started at Rishra in Bengal in 1907. Okay, are we done, guys?
Yes, sir. Done. Okay, so let's move Yes, ahead. sir. सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अब सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स क्या हुआ ब्रिटिशर्स के आने के बाद से, ठीक है. लेट्स सी. In the 19th century, Europe, a new era took shape on basis of values like humanitarianism, democracy, nationalism, liberalization, etc. Sir, humanitarianism क्या है? It means इंसानियत, ठीक है. A man is valued above everyone. Then comes your democracy, freedom to speech, freedom to express, and freedom to live your own life. Nationalism, अपने country के लिए बहुत ज्यादा एक देशभक्ति होना, ठीक है. And liberalization, what is liberalization या liberalism? That is, you have the liberty to express yourself, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं रहेगा. This change in West led to obvious repercussions, after effects. Repercussions का मतलब क्या है? After effects लिख के लेंगे, अंडरलाइन करेंगे the word repercussions, उसका मतलब है आफ्टर इफेक्ट्स. For carrying out administration, the British had to understand the Indian society. For this purpose, they started studying the tradition, history, literature, as well as music, flora, fauna. Flora and fauna मतलब plants and animals. Underline करेंगे, flora and fauna means plants and animals. In 1784, Sir William Jones, underline करेंगे, in the year 1784, Sir William Jones, an Indian officer, an English officer, established the Asiatic Society of Bengal. अंडरलाइन करेंगे, कहाँ पे? At Kolkata. Max Muller, a German thinker, was a devout scholar of Indian religion, language, and history. Due to these examples, there aroused feelings among newly educated Indians to study Indian religion, history, and traditions. अब हुआ क्या था कि लोगों को समझ में आया, ठीक है, लोगों को समझ में आया कि वहां के जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक चीज समझ में आया कि if you have to, or if you want to have a control over India, then you have to make sure you learn its culture and tradition. तो उसके लिए क्या किया, बहुत सारे इंग्लिश स्कॉलर्स ने ना इंडियन कल्चर को स्टडी करना स्टार्ट किया, ट्रेडिशन को स्टडी करना स्टार्ट किया. और इसी चक्कर में एक इंग्लिश थिंकर या इंग्लिश ऑफिसर जिनका नाम था विलियम जोन्स, उन्होंने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता उन्होंने एस्टैब्लिश किया या उन्होंने फॉर्म किया. सर उसमें क्या था, इंडियन कल्चर को बहुत ही डीप में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है. बस इतना ही नहीं, तो एक जर्मन थिंकर, ठीक है, मिस्टर मूलर, दैट इज मैक्स मूलर, उन्होंने भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड, डिवोट मतलब क्या, डिटेल्ड नॉलेज ले रखा था. किसका सर? तो उन्होंने ले रखा था ऑफ इंडियन लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड रिलीजन. ड्यू टू दीज एग्जांपल्स देयर अराउज फीलिंग्स. ये सब चीज को देख के क्या हुआ, इंडियन थिंकर्स, इंडियन स्कॉलर्स को भी समझ में आया कि नहीं, वी शुड आल्सो एंगेज आवरसेल्फ इन द ग्रेट वर्क ऑफ नोइंग आवर इंडियन कल्चर दैट इज सो ब्राइट. हम लोग अभी तक सब कुछ फॉरेन कल्चर के बारे में जान रहे, लेकिन अभी असल में हम लोग इंडियन कल्चर को समझेंगे, जानेंगे, ठीक है. द ब्रिटिश introduced many laws in India. In 1829, Lord William Bentinck passed the Sati Prohibition Act. In 1856, Lord Dalhousie passed the Widow Remarriage Act. These acts were responsible for social reforms. अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स एक वेस्टर्न नॉलेज लेके आए थे, ठीक है, और वहां पे ये सती प्रोहिबिशन एक्ट. सती क्या है? सती मतलब क्या होता है, पहले के जमाने में ना चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड मैरिज हो जाता था, या फिर किसी भी रीजन से अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो वाइफ को क्या करता था, या वो लोग बोलते थे आपको भी ना वो पराई के ऊपर बैठना है, मतलब आपको भी खुद को ना अग्नि में बैठ जाना है, खुद को भी आपने भी डिवोट कर देना है. वाई? सो दैट आपका हस्बैंड के बाद आपका और कुछ नहीं, जो भी है यही था, जो कि गलत था, ठीक है. और उसके बाद लॉर्ड डलहौसी ने, उन्होंने भी एक पास किया, दैट इज विडो रीमैरिज. मतलब जो लोग भी विधवा हो गए हैं, विधवा लोग जो थे ना, जिनका हस्बैंड का डेथ हो गया, वो लोग को एक चांस मिलता था फिर से मैरिज करने का, सो दैट उनका लाइफ खराब ना हो. समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ खराब काम ही किए, बहुत सारे अच्छे काम भी किए, जिसमें से ये दो एक्ट थे, वन वाज सती प्रोहिबिशन एंड अदर वन वाज विडो रीमैरिज, ठीक है. नेक्स्ट, for carrying out administration in India, the British required English educated Indians. According to recommendation of Lord Macaulay, underline करेंगे, according to the recommendation by Lord Macaulay in 1835, English education system started being imparted in India. Through new education, Indians were introduced to Western thoughts, modern reforms, science and technology.
In 1857, universities were established at Kolkata, Mumbai, and Madras, now known as Chennai. The Western education middle class Indian led the social reform movement in India. अब हुआ क्या, इंग्लैंड ने तो ये समझ गया है, ब्रिटिशर्स ये तो समझ गए कि हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग अगर इंडिया को रूल करना चाहते हैं तो इंडिया के कल्चर को समझना चाहेंगे, लेकिन 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 एक ट्विस्ट था, अकेले वो लोग मैनेज कर पाते क्या, नहीं कर पाते, ठीक है, दे नीडेड सपोर्ट, और उसके लिए क्या चाहिए उनको, हाईली क्वालिफाइड इंडियंस चाहिए था, जो एजुकेटेड हो, जिनको इंग्लिश का नॉलेज। तो धीरे धीरे करके क्या हो गया, वेस्टर्न एजुकेशन मतलब इंग्लिश वाज स्टार्टेड इन इंडिया। इससे क्या हो गया है, जो इंडियन पीपल थे, मिडिल क्लास इंडियन पीपल थे, उनके अंदर एक रिफॉर्मेशन आया, उनके अंदर एक चेंज आया, एंड यस उसी के साथ सोशल रिफॉर्म्स भी आया, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, एंड इन डिटेल बहुत सारे चेंजेस भी आए, ठीक है। इन ईयर 1857 बहुत सारे यूनिवर्सिटीज वर सेटअप, दैट वाज इन मुंबई, कोलकाता, मद्रास, टुडे नोन एज चेन्नई। क्लियर है सबको? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, So sir. that's it. आज का चैप्टर मेरा यहीं पे खत्म हो गया है, बट बिफोर वी वाइंड अप जरा पढ़ के लेंगे और मुझे डाउट पूछेंगे एवरीवन। Sir, यस, Bentin C के मतलब क्या? BENTIN C के